آخری مسافر۔ رات کے 1:47 بج رہے تھے۔ کراچی کا سپر ہائی وے تقریباً سنسان تھا۔ دور دور تک صرف ہیڈ لائٹس کی روشنی اور ہوا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ 25 سال سے بس چلانے والا سلیم ہر روز کی طرح آخری سفر پر نکلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ سلیم کبھی راستے سے نہیں ڈرتا، لیکن ایک راستہ ایسا تھا جس کا نام سنتے ہی وہ خاموش ہو جاتا تھا، اور وہ کراچی سے عمر کوٹ جانے والا راستہ تھا۔ لیکن کبھی اس نے کسی کو اس بات کی وجہ نہیں بتائی۔ بس میں ٹوٹل 20 مسافر تھے۔ کنڈکٹر نعیم نے ہر مسافر کا ٹکٹ چیک کیا اور لسٹ پر نشان لگا دیا، سب پورے ہیں۔ سلیم نے انجن اسٹارٹ کیا۔ بس آہستہ آہستہ ٹرمینل سے نکل گئی۔ پہلے 1-2 گھنٹے سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ کچھ لوگ سو گئے تھے اور کچھ لوگ موبائل دیکھ رہے تھے، اور چند خاموشی سے کھڑکی کے باہر اندھیرے کو دیکھ رہے تھے۔ رات 2:58 پر اچانک شدید دھند چھا گئی، اتنی گہری کہ ہیڈ لائٹس بھی چند میٹر سے آگے کچھ نہیں دکھا سکی۔ سلیم نے رفتار کم کر دی۔ اسی دوران سڑک کے کنارے کسی نے ہاتھ دیا۔ نعیم نے حیرت سے کہا، اس وقت؟ وہ شخص شال اوڑھے کھڑا تھا، چہرہ دھند میں چھپا ہوا تھا۔ سلیم نے چند لمحے سوچا، پھر بس روک دی۔ دروازہ کھلا۔ وہ آدمی بغیر کچھ بولے بس میں چڑھ آیا۔ اس نے نہ ہی سلام کیا اور نہ ہی ادھر ادھر دیکھا، بس سیدھا آخری سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ نعیم اس کے پاس گیا۔ بھائی ٹکٹ دینا۔ اس شخص نے آہستہ سے جیب سے ایک پرانا سا ٹکٹ نکالا۔ کاغذ اتنا پرانا تھا جیسے برسوں سے بھیگا ہوا ہو۔ نعیم نے ٹکٹ دیکھا اور چند لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ ٹکٹ پہ تاریخ لکھی تھی 17 جولائی 1998۔ نعیم ہنس پڑا، یہ کیا مذاق ہے؟ آج تو 2026 ہے۔ اس نے دوبارہ اوپر دیکھا، لیکن وہ شخص کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ایک لفظ بھی نہیں کہا اس نے۔ نعیم واپس آیا اور لسٹ نکال لی۔ اس نے دوبارہ گنا، 22 مسافر۔ اس نے آخری سیٹ کی طرف دیکھا، وہ آدمی وہیں بیٹھا تھا۔ اب گنے 23۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ بھائی سلیم، ایک بات پوچھوں؟ ہاں، اگر لسٹ میں 22 لوگ ہیں تو 23واں کہاں سے آیا؟ سلیم نے شیشے سے آخری سیٹ کی طرف دیکھا، چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً بس روک دی۔ نہیں، اس آدمی کو نیچے اتارو۔ کیوں؟ سلیم نے کانپتی آواز میں کہا۔ کیونکہ میں نے بس روکی نہیں تھی۔ نعیم کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اگر بس رکی ہی نہیں تو وہ آدمی اندر کیسے آیا؟ اسی لمحے بس کی تمام لائٹس ایک ساتھ بجھ گئی۔ پورا اندرونی حصہ اندھیرے میں ڈوب گیا، صرف انجن کی آواز باقی تھی۔ 2 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، پھر ایمرجنسی لائٹ جلی۔ نعیم نے فوراً آخری سیٹ کی طرف دیکھا، وہ خالی تھی۔ وہ شخص غائب ہو چکا تھا، مگر اس کی سیٹ پر ایک پرانا بھیگا ہوا ٹکٹ پڑا تھا، اسی تاریخ والا 17 جولائی 1998۔ اور ٹکٹ کے پچھلے حصے میں صرف ایک ہی جملہ لکھا ہوا تھا، سفر تو ابھی شروع ہوا ہے۔ بس کے اندر ایک عجیب خاموشی چھا گئی تھی۔ نعیم ابھی تک اس بھیگے ہوئے ٹکٹ کو ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ سلیم بھائی، یہ آدمی کہاں گیا؟ سلیم نے جواب نہیں دیا۔ وہ صرف سامنے سڑک کو گھور رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، دروازہ سفر کے دوران ایک بار بھی نہیں کھلا۔ اگر وہ اترا نہیں تو پھر وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ بس دوبارہ چل پڑی۔ کسی مسافر نے کچھ نہیں کہا، لیکن سب کے چہروں پر بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک ایک چھوٹی بچی نے اپنی ماں کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ امی؟ وہ انکل پھر سے بیٹھ گئے۔ ماں نے حیرت سے پیچھے دیکھا۔ آخری سیٹ خالی تھی۔ وہاں کوئی نہیں ہے بیٹا۔ بچی کی آنکھیں خوف سے بڑی ہو گئی۔ امی، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر قریب بیٹھے 2 مسافروں نے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا۔ سیٹ اب بھی خالی تھی۔ رات کے 3:21 بج رہے تھے۔ بس ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئی جہاں دونوں طرف سوکھے درخت تھے۔ ہوا اچانک بالکل بند ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا خاموش ہو گئی ہے۔ اسی لمحے بس کی ڈیش بورڈ پہ لگا ہوا GPS بند ہو گیا۔ گھڑی رک گئی۔ 3:21۔ سلیم نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی، اس میں بھی
3:21। नईम ने मोबाइल निकाला, उस पर भी 3:21। उसकी घड़ी में भी 3:21। वक्त जैसे आगे बढ़ने से इनकार कर चुका था। क्या नेट चल रहा है? एक मुसाफिर ने पूछा। सबने अपने मोबाइल देखे, कोई सिग्नल नहीं, ना कॉल, ना इंटरनेट, ना जीपीएस, जैसे पूरी बस दुनिया से कट चुकी हो। चंद मिनट बाद सलीम ने दूर एक छोटा सा होटल देखा। उस पर टूटी हुई न्यून लाइट जल रही थी। लिखा था आराम होटल। सलीम ने फौरन बस रोक दी। सब लोग 5 मिनट के लिए नीचे उतर जाएं। मुसाफिर जल्दी जल्दी बाहर निकल आए। सबके चेहरों पर खौफ नजर आ रहा था। होटल के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने जैसे ही सलीम को देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। तुम लोग इस रास्ते से आए हो? जी। रास्ते में से किसी को साथ तो नहीं बिठाया? सलीम खामोश हो गया। नईम ने जेब से वो पुराना टिकट निकालकर मेज पे रख दिया। बूढ़े ने टिकट देखा और उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ये टिकट मैंने पहले भी देखा है। 28 साल पहले इसी तारीख इसी रास्ते से एक बस हमेशा के लिए लापता हो गई थी। वो बस कभी नहीं मिली, सिर्फ उसके मुसाफिरों के टिकट मिले थे, सब भीगे हुए, बिल्कुल इसी तरह। नईम के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। और मुसाफिर? बूढ़े ने नजरें झुका ली। आज तक नहीं मिले। उसी लम्हे होटल के बाहर से बस का हारून बजा। सब चौंक कर बाहर भागे। ड्राइवर सीट पर नहीं, कोई बैठा नहीं था। सलीम ने साफ देखा, वो स्याह शाह, वो खामोश वजूद जिसने चंद देर पहले बस में सफर किया था। मगर इससे पहले कि कोई करीब पहुंचता, बस की हेडलाइट्स खुद ब खुद जल गई। इंजन स्टार्ट हो गया और बस बगैर किसी ड्राइवर के आहिस्ता आहिस्ता खुद चलने लगी। मुसाफिर चीखते हुए उसके पीछे दौड़े, लेकिन चंद सेकंड बाद घनी धुंध ने पूरी बस को निकल लिया। जब धुंध हटी तो बस कहीं पर भी नहीं थी। हवा में अजीब सी ठंड घुल चुकी थी। नईम ने आंखें खोली तो उसे लगा जैसे वो किसी डरावने ख्वाब से जागा हो। वो जमीन पर नहीं था, वो दोबारा बस के अंदर खड़ा था। उसने घबरा कर इधर उधर देखा। तमाम मुसाफिर अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सलीम हस्बे मामूल ड्राइविंग सीट पर था। बस खामोशी से एक अंधेरी सड़क पर चल रही थी। ये कैसे मुमकिन है? नईम ने हाँफते हुए पूछा। सलीम ने बगैर उसकी तरफ देखे सिर्फ इतना कहा, हम वापस नहीं आए, हम कहीं नहीं गए थे। नईम को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने फौरन मुसाफिरों की गिनती शुरू की। 1 2 3 22 23 24। वो चौंक गया। सलीम भाई, हम तो 22 मुसाफिर लेकर निकले थे, तो ये 24 कैसे हो गए? सलीम ने शीशे से पीछे देखा। मत गिन, जितनी बार गिनोगे उतनी बार तादाद बदलती जाएगी। नईम ने दोबारा गिनती की। इस बार सिर्फ 21 थे। 2 मुसाफिर गायब हो चुके थे, मगर किसी को एहसास ही नहीं था कि उनके साथ बैठे लोग अब मौजूद नहीं। एक औरत अब भी अपने शौहर से बातें कर रही थी, हालांकि उसके साथ वाली सीट खाली थी। वो हंस रही थी, सवाल पूछ रही थी और उसे जवाब दे रही थी, जैसे कोई वाकई उसके साथ बैठा हो। नईम के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अचानक बस की तमाम खिड़कियों पर धुंध जम गई। उस धुंध पर आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों के निशान बनने लगे। उसके बाद एक एक करके अल्फाज उभरने लगे। गिनती मत करो, पीछे मत देखो, वो तुम्हें देख रहा है। एक नौजवान चीख मारकर अपनी सीट से खड़ा हो गया। ये किसने लिखा है? किसी ने जवाब नहीं दिया। उसी लम्हे बस के अंदर एक ऐसी आवाज गूंजी जैसे कोई बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा हो। आवाज बस के पिछले हिस्से से आ रही थी। नईम ने हिम्मत करके पीछे देखा। आखिरी सीट पर वही स्याह शाल ओढ़े मुसाफिर बैठा था। इस बार उसका चेहरा झुका हुआ नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा ऊपर उठा रहा था। पूरी बस में ऐसी खामोशी थी कि सबको अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसका चेहरा मुकम्मल नजर आया,
नईम की सांसें रुक गईं। वो कोई अजनबी नहीं था, वो सलीम था। वही आंखें, वही चेहरा, वही सफ़ेद होते हुए बाल। सिर्फ फर्क इतना था कि उसके कपड़े भीगे हुए थे और उसकी आंखों में जिंदगी नहीं थी। नईम ने फौरन ड्राइविंग सीट की तरफ देखा। सलीम अब भी बस चला रहा था। फिर पीछे देखा, सलीम वहां भी बैठा था। एक ही वक्त में दो सलीम। ड्राइविंग सीट पर बैठे सलीम ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, ये रास्ता मुझे जानता है। उसी लम्हे आखिरी सीट पर बैठे दूसरे सलीम ने पहली बार होंठ हिलाए। उसने बहुत आहिस्ता से कहा, तुम्हें यहां वापस नहीं आना चाहिए था। ये अल्फाज सुनते ही बस के अंदर की तमाम लाइट्स एक साथ बंद हो गई। सिर्फ एक सुर्ख इमरजेंसी लाइट जल रही थी और उस सुर्ख रोशनी में नईम ने देखा बस की हर सीट पर अब कोई ना कोई बैठा हुआ था। लेकिन उनमें से आधे लोग वो नहीं थे जो कराची से सवार हुए थे। कुछ के चेहरे मिट्टी से भरे थे, कुछ के कपड़े पानी में भीगे हुए थे और सबकी नजरें सिर्फ एक शख्स पर थी और वो था सलीम। अचानक बस के स्पीकर जो बरसों से खराब थे खुद ब खुद चल पड़े। एक भारी बेजान आवाज गूंजी, अगला स्टॉप वो जगह जहाँ कोई वापस नहीं जाता। उसी लम्हे बस ने जोर का ब्रेक लगाया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था और उस अंधेरे में दर्जनों लोग खामोशी से बस का इंतजार कर रहे थे। बस के दरवाजे खुल चुके थे। बाहर गहरा अंधेरा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उस अंधेरे से कई इंसानी साए उभरने लगे। वो खामोश थे, किसी के कदमों की आवाज़ नहीं आ रही थी। सिर्फ वो सब एक साथ बस की तरफ बढ़ रहे थे। बस के अंदर हर शख्स डरा हुआ था। एक बूढ़े मुसाफिर ने लड़ती आवाज़ में पूछा, ये लोग कौन है? उसी लम्हे स्पीकर से फिर वही भारी आवाज़ सुनाई दी, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो, नए मुसाफिर सवार हो रहे हैं। दरवाजे से पहला शख्स अंदर आया। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। सब खामोशी से अंदर आते गए। किसी ने टिकट नहीं दिखाया, किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जैसे जैसे वो सवार होते गए बस में जगह बनती गई। हालांकि चंद लम्हे पहले एक भी सीट खाली नहीं थी। नईम ने कांपते हुए सलीम से कहा, बस भगा दो, यहाँ से निकलते हैं। सलीम ने स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की, लेकिन बस आगे नहीं बढ़ी। जैसे किसी ने पहियों को ज़मीन में गाड़ दिया हो। तभी आखिरी सीट पर बैठा वो पुरस्कार मुसाफिर खड़ा हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ ड्राइवर के पास आया। उसने सलीम के कान में सिर्फ एक ही जुमला कहा, अब तुम्हारी बारी। अचानक सलीम के जहन में एक पुराना मंजर बिजली की तरह चमका। 28 साल पहले वो इसी रास्ते पर एक नौजवान कंडक्टर था। उस रात शदीद धुंध में उनकी बस का एक खौफनाक हादसा हुआ था। बस गहरी खाई में जा गिरी थी। कई मुसाफिर मौके पर ही मर गए थे, मगर सलीम जिंदा बच गया था। हादसे के बाद उसने कभी किसी को पूरी हकीकत नहीं बताई, क्योंकि एक हकीकत सिर्फ वो जानता था। हादसे से चंद लम्हे पहले उसने सड़क के किनारे एक अजनबी को नज़रअंदाज किया था। उसने बस रोककर उसे सवार किया था और जैसे ही वो आदमी आखिरी सीट पर बैठा, धुंध ने पूरी सड़क को निगल लिया था। नईम हैरत से बोला, तो ये सब तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है? सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैं हर 28 साल बाद इसी रात इसी रास्ते पर वापस आता हूँ। मैं समझता था मैं जिंदा हूँ, लेकिन हकीकत में मैं कभी उस हादसे से वापस आया ही नहीं। ये सुनते ही बस के अंदरूनी मंजर बदल गए। सीटें टूट फूट गईं, शीशों पर दरारें पड़ गईं, फर्श पर पानी भरने लगा। नईम ने नीचे देखा। वो पानी नहीं था, वो बारिश का वही पानी था जिसमें बरसों पहले हादसा हुआ था। हर तरफ टूटी हुई सीटें, खून के धब्बे और खामोश चेहरे दिखाई देने लगे। तमाम वो मुसाफिर जो अभी तक जिंदा नजर आ रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता धुंध में बदलने लगे। वो सब उसी हादसे के मुसाफिर थे जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सके। आखिरी मुसाफिर ने पहली बार मुस्कुरा कर कहा,
हर सफ़र का एक इख्तिताम होता है और हर राज एक दिन सामने आ ही जाता है। उसने हाथ बढ़ाया। सलीम ने खामोशी से उसका हाथ थाम लिया। अगले ही लम्हे पूरी बस घनी धुंध में गायब हो गई। 3 दिन बाद हाईवे पुलिस को एक सुनसान मोड़ पर एक पुरानी जंग आलूदा बस मिली। वो आधी मिट्टी में दबी हुई थी। इंजन ठंडा था। बस के अंदर कोई मौजूद नहीं था। सिर्फ ड्राइवर के सीट पर एक पुराना टिकट रखा था। उस पर तारीख लिखी थी 17 जुलाई 1998 और पिछली तरफ सिर्फ एक ही जुमला, अगर रास्ता खुद तुम्हें बुलाए तो कभी मत जाना। उस हादसे की कोई सरकारी फाइल कभी मुकम्मल ना हो सकी। मकामी लोग आज भी कहते हैं कि हर 17 जुलाई की रात उसी सुनसान सड़क पर एक पुरानी बस धुंध में गुजरती दिखाई देती है। वो चंद लम्हों के लिए रुकती है, दरवाज़ा खोलती है और जैसे किसी नए मुसाफिर का इंतज़ार कर रही हो। उसके बाद वो बस धुंध में गुम हो जाती है और पीछे सिर्फ एक आवाज़ रह जाती है, अगला स्टॉप, आखिरी सफ़र।